ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और अ, अभी तक हमने एक ही मॉडल पढ़ा था व्हिच वाज़ पीजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो बिफोर वी मूव ऑन मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ जो कि मैंने लास्ट टाइम ज़िक्र किया था कि हमारे पास क्योंकि टाइम नहीं है, तो इसीलिए ये शेयर नहीं कर पाया था मैं वीडियो लास्ट टाइम भी। तो एक एग्ज़ाम्पल्स आपको मिल जाएँगी पीजेट थ्योरी की और थोड़ी-सी रिवीजन हो जाएगी पिछले लेक्चर की। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है जी 3-4 मिनट की। तो ये आप लोग देखें। Piaget's theory argues that we have to conquer 4 stages of cognitive development. First, the sensory motor stage. Second, the pre-operational stage. Third, the concrete operational stage. And fourth, the formal operational stage. Only once we have gone through all the stages, at what age can vary, we are able to reach full human intelligence. 1. The sensory motor stage, ages birth to 2. In the sensory motor stage, we develop through experiences and movement our 5 senses. Our brain wants to see, hear, smell, taste and touch as much as possible. First, we start with simple reflexes, and soon after we develop our first habits. From 4 months old, we become aware of things beyond our own body, and then as we get older, we learn to do things intentionally. A key milestone is the development of working memory, or in Piaget terms, our realization of object permanence. Before that, our mum can show and then hide a teddy, and we would think it's gone. After, we understand that objects continue to exist, even when we can't see them. We start becoming curious about everything. We want to smell flowers, taste food, listen to sounds, and talk to strangers. To explore more, we move. We learn to sit, crawl, stand, walk, and even to run. This increased physical mobility consequently leads to increased cognitive development. But we remain egocentric, meaning we can perceive the world only from our own point of view. 2. The pre-operational stage, ages 2 to 7. Our thinking is mainly categorized through symbolic functions and intuitive thoughts. We have lots of fantasies and believe objects are alive. As we are not able to apply specific cognitive operations, Piaget calls this stage pre-operational. We learn to speak and understand that words, images and gestures are symbols for something else. When we draw our family, we are not concerned about drawing each person to scale, but rather with their symbolic meanings. We love to play pretend, which allows us to experience something new and learn a lot. At around age 4, most of us become very curious and ask many questions. We want to know everything. We can call it the birth of primitive reasoning. Piaget calls it the intuitive age, because while we realize that we have a vast amount of knowledge, we have no idea how we acquired it. Our thinking in this stage is still pretty egocentric. We think others see the world like we do, and still don't understand that they see it differently. 3. The concrete operational stage, ages 7 to 11. We finally discover logic and we develop concrete cognitive operations, such as sorting objects in a certain order. One example of this is inductive reasoning, which means that if we see someone eating a cookie, we can draw a conclusion and then make a generalization. And we now get the concept of conservation. We understand that if we pour orange juice from a normal glass to a taller one, the amount stays the same. Our younger sister will pick the taller glass, thinking she gets more. By the same logic, we only now can understand that if 3 plus 5 equals 8, then 8 minus 3 must equal 5.
Our brain learns to rearrange our thoughts, to classify and build concrete operational mental structures. For example, we now know that we can reverse an action by doing the opposite. Excited by our new mental abilities, we apply them in conversations, activities, when we learn to write, and in school. As a result, we get to know ourselves better. We begin to understand that our thoughts and feelings are unique and not necessarily those of others. That means that we learn to put ourselves in someone else's shoes. 4. The formal operational stage, age 12 plus. Once we become teenagers, we become formally operational. We now have the ability to think more rationally about abstract concepts and hypothetical events. Our advanced cognitive abilities allow us to understand abstract concepts such as success and failure, love and hate. We form a deeper understanding of our own identity and our morality. We now also think that we understand why people behave the way they behave, and as a result, can become more compassionate. Our brain can now do deductive reasoning, which means we can compare two statements and reach a logical generalization. Our new mental skills allow us to plan our life systematically and prioritize, and we can make assumptions about events that have no necessary relation to reality. We can now also philosophize and just think about thinking itself. Our new sense for our identity now also creates egocentric thoughts, and some start to see an imaginary audience watching them all the time. Piaget believed in lifelong learning, but insisted that the formal operational stage is the final stage of our cognitive development. Jean Piaget's first interest जी बेटा. So this was an example video of Piaget's theory of cognitive development. तो जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था वो थोड़ा सा आपको रिवाइज हो गया होगा, प्लस एक और इनसाइट आपको मिली होगी पीजेट थ्योरी की तरफ. अच्छा, अब बेसिकली जी एक मिनट में सवाल ले लेता हूँ. अगर आपका कोई सवाल है जी प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड तो कर सकते हैं. आप, मैं सवाल लेता हूँ. आतिफ जमान का सवाल था जी. चले आतिफ, आपको एक लास्ट वार्निंग है, अगर आइंदा ऐसा हुआ तो आप फिर मेरी किसी क्लास में नहीं आ सकेंगे ऑनलाइन. आप लोग बेटा जब रेज हैंड करें तो फिर क्वेश्चन करें. और जी आतिफ ने अब रेज हैंड किया. अब आतिफ का हाथ जो है ना वो नीचे नहीं होना चाहिए. जी आतिफ. अस्सलाम वालेकुम सर. वो गलती से हो जाता है सर, मैं भी ज्वाइन किया तो पता नहीं चला. अच्छा चले जी, गलती एक दफा माफ होगी. ठीक है जी. अच्छा, सो बेसिकली हमने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसीलिए पढ़ी क्योंकि cognitive development is related to our psychology, and psychology is related to our moral development, and moral development means our ethical development. So basically हमारे दिमाग से हमारे ethics निकलते हैं. moral development मतलब हम ethically develop किस तरह करते हैं. So ये उसकी ही एक कड़ी है moral development. कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है और उसके बाद फिर उसके ऊपर बेस करती है हमारी मोरल डेवलपमेंट. तो जब भी हम एथिकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, मोरल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो उसके साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ना बेहतर होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए. वरना ऐसा ये कोई हमारे सब्जेक्ट से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी. बट अब ये थोड़ी सी आपको रिलेटेड लगेगी क्योंकि जो अगली स्टेज हम पढ़ने जा रहे हैं, that is actually the main stage
ऑफ मोरल डेवलपमेंट और हिस्ट्री अगर आप उठाएं, दिस इज परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी प्रेजेंटेड by any psychologist related to moral development. moral development से मुराद यहाँ पे आपकी ethical development है। तो अभी तो हमने देखा हमारा दिमाग कैसे बनता है, इंटेलिजेंस कैसे आती है। अब हम देख रहे हैं वो इंटेलिजेंस एथिक्स के साथ कैसे एसोसिएट होती है। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज कोलबर्ग्स लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट। एक इंसान एथिकली किस तरह बनता है, ठीक है। तो एथिकली हम किस तरह बनते हैं, या क्या वो फैक्टर्स हैं जो हमारे एथिकल बनने में, या स्टेजेस हैं एक्चुअली जो हमें एथिकल बनाती हैं या कितना एथिकल बनाती हैं। उसके लिए पढ़ते हैं कोलबर्ग्स लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट। चले जी, दिस इज द कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट मॉडल एंड अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग a human brain goes through 3 stages before it becomes, या before नहीं एक्चुअली, ये वो स्टेजेस हैं जिन पे किसी ना किसी स्टेज पे हम सब भी इस टाइम फॉल कर रहे हैं। तो आप में से और मैं जितने भी इर्द-गिर्द हमारे लोग हैं वो इनमें से किसी ना किसी स्टेज के ऊपर फॉल करते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं विद द प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज के भी आगे 2 सब स्टेजेस हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, और दूसरा है सेल्फ इंटरेस्ट। फिर उसके बाद आ जाती है कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज की भी आगे 2 सब स्टेजेस हैं, इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कन्फर्मिटी, अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस। और फिर उसके बाद फाइनली आ जाती है जी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें 2 सब स्टेजेस हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। अच्छा, पीजेट थ्योरी के मुताबिक तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स वो इन स्टेजेस से गुजरते हैं और फाइनली वो पोस्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा जरूरी नहीं है। कोलबर्ग के मुताबिक पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज पे कोई पहुंचता है, और खास तौर पे इसकी भी जो आखिरी स्टेज है यूनिवर्सल प्रिंसिपल, इस पे बहुत कम दुनिया की पॉपुलेशन, लेस देन 1% 2% पॉपुलेशन पहुंचती है, एग्जिस्ट करती है ये स्टेज, लेकिन इस पे बहुत कम लोग होते हैं जो इस पे पहुंचते हैं। फिर इसमें ये भी जरूरी नहीं कि आपने जस्ट लाइक पीजेट थ्योरी एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे ही जंप करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। कोलबर्ग के मुताबिक आप किसी एक स्टेज को बीच में स्किप भी कर सकते हैं। यानी आप ओबीडियंस और पनिशमेंट से शुरू हुए, आप डायरेक्टली इंटरपर्सनल अकॉर्ड पे चले गए। तो ये बात मैं बता दूं कि ये उस तरह की एक स्टेजेस नहीं है कि आपने एक को फॉलो करना है तो आप दूसरी पे जाएंगे। तो ये कोई भी किसी भी स्टेज पे हो सकता है। अभी हम बड़े मजे का क्विज भी करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि आप बेसिकली मोरली अभी तक आपकी कितनी डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। तो पहले एक सवाल था, अच्छा जी, रोल नंबर 47 जो है उसको मैं क्लास से बाहर निकालने लगा हूँ। 47 जी 47 ये आपने माफ कर दिया, लास्ट वार्निंग दे गए। चलें जी, सो स्टार्ट करते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। बेसिकली मैं रिपीट कर दूं, 3 स्टेजेस हैं, उनके आगे हर स्टेज की 2 सब स्टेजेस हैं, तो टोटल 6 स्टेजेस बनी मोरल डेवलपमेंट की। सबसे पहली स्टेज आती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। आपके अंदर अच्छे और बुरे की तमीज, मोरल डेवलपमेंट आपकी स्टेज की पहली स्टेज, अच्छे और बुरे की तमीज, ये आती है उन बातों से जिन पे आपको रोका जाता है या पनिश किया जाता है। खास तौर पे एक बच्चा जो है उसको अच्छे बुरे का भी नहीं पता, उसको ये पता है कि मुझे इस बात से रोका गया या मुझे इस बात पे डांट पड़ी, मुझे इस हरकत पे मार पड़ी। आप उसे 2-3 दफा मारेंगे और उसके बाद वो तीसरी चौथी दफा
वो काम नहीं करेगा। तो उसको अच्छे और बुरे का पता किस तरह चला? क्योंकि जब वो कोई काम करता था, आप उसको रिएक्शन में पनिश कर देते थे, या चले कुछ इसमें साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप उसको एनकरेज भी करते थे। तो अगर आप किसी बच्चे को किसी काम पे खुश होते हैं, तालियाँ मारते हैं, तो वो काम बार-बार करता है, बड़ा खुश होके आपको देखता है कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मुझे एप्रिसिएशन मिल रही है। इसी तरह छोटा बच्चा, साल की उम्र से ही बच्चा जब भी कोई बुरा काम करता है, तो वो कोई बुरा काम करते वक़्त, किसी चीज़ को पकड़ते वक़्त एकदम आपकी तरफ देखता है कि आपका क्या रिएक्शन है, और अगर आप डाँटते हैं, तो वो फिर डर के पीछे हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चा से शुरू से ही साल की उम्र से लेके, अच्छा इस स्टेज की भी अब कोई ना लिमिट नहीं है, पीरियड की तरह इसकी कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है अभी भी आप में से कुछ लोग यहाँ पे फॉल करते हो, तो इंसान की मोरल डेवलपमेंट, उसके एथिक्स बनाती हैं पनिशमेंट्स जो उसको मिलती हैं डिफरेंट एक्शंस के ज़रिए। जिस तरह मैंने आपको बच्चे की एग्जांपल दी कि बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है, उसको ये सेंस हो जाती है कि किस काम में मुझे शाबाश मिल रही है और किसमें मुझे पनिशमेंट मिल रही है। तो जिसमें मुझे पनिशमेंट मिल रही है, वो काम नहीं करना, वो बुरा है, बेशक वो अच्छा क्यों ना हो। अब यहाँ पे अगेन वही आ जाता है ना कि एथिक्स क्यों डिफरेंट है? क्योंकि भाई आपको डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट पनिशमेंट्स मिली है। आप में से, अब मिसाल के तौर पे एक बच्चा, उसको बचपन में किसी को मारने पे मार पड़ी, उसको पता है कि यार मैंने किसी को मारना नहीं है। लेकिन कुछ फैमिलीज़ मैंने देखी हैं, वो बड़ा खुश होते हैं कि हमारे बच्चे ने फलाँ बच्चे को मारा, और वो उसको शाबाश देते हैं। शाबाश, मार के आया तो। तो उसके नज़र में मारना इज़ नॉट अ बैड थिंग। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ को अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना लेगा, जो उसकी नज़र में बुरा नहीं है। लेकिन जिसको डाँट पड़ी होगी कि मारना बुरी बात है बेटा, आपने आइंदा किसी को नहीं मारना, तो वो फिर बच्चों को आइंदा ऑब्वियसली नहीं मारेगा। तो ये एक सबसे पहली स्टेज है, और यहाँ पे एक डिफरेंस भी आ जाता है कि हमें डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट पनिशमेंट्स मिलती हैं, तो इसीलिए हमारे एथिक्स बचपन से डिफरेंट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। चलें जी, ये तो था रिएक्शनरी, हम एज़ अ रिएक्शन अपने मोरल्स बनाते हैं। अगला है सेल्फ इंटरेस्ट। जो जैसे आप थोड़े से बड़े होते हैं और आप थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं। सेल्फिश इन द सेंस हो जाते हैं कि आप वही काम करना पसंद करते हैं जिनमें आपका फ़ायदा है। तो सेल्फ इंटरेस्ट स्टेज मीन्स कि वो स्टेज है ये मोरल डेवलपमेंट की, जिसमें आप अपना फ़ायदा देखते हैं, और अगर आपको किसी चीज़ में फ़ायदा मिल रहा है, तो आपकी नज़र में दैट थिंग इज़ एथिकल। थोड़े से आप इगोइस्टिक होते हैं इस स्टेज में, ठीक है? मिसाल के तौर पे आप अ, झूठ बोल रहे हैं और आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, और फ़ायदे की अब लेवल भी ऑब्वियसली डिपेंड करता है, लेकिन आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है। तो आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि यार मुझे झूठ बोलने से फ़ायदा हुआ है, तो इसका मतलब झूठ बोलना अच्छी चीज़ है। और साथ ही अगर आपको पनिशमेंट ना मिली हो बचपन से झूठ बोलने पे, तो फिर तो आपका झूठ बोलना मज़ीद पक्का हो जाएगा कि यार झूठ बोलना, एक तो मुझे पनिश भी नहीं किया गया मेरे माँ-बाप की तरफ से, और दूसरा मुझे इससे फ़ायदा मिला, मैं बच गया, मुझे मार पड़ने लगी थी, मैंने झूठ बोला अम्मी-अब्बू को, मैं बच गया। या अब मैंने झूठ बोला, मुझे पैसे मिल गए। तो ये दूसरे में सेल्फ इंटरेस्ट आप सीखते हैं कि मेरे लिए इसमें क्या है, और इसमें आपकी टीनेज ज़्यादातर शामिल होती है। टीनेजर जो है, वो थोड़ा सेल्फ इंटरेस्ट की स्टेज पे की तरफ गामज़न होता है, उसके ऊपर फॉल करता है, और व्हाट इज़ गुड फॉर मी इन इट, ये स्टेज आपकी सेकंड स्टेज है सेल्फ इंटरेस्ट की। अच्छा, ये थी प्री कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल का मतलब नॉर्म्स, नॉर्मली क्या होता है। अब आगे कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज में अब आप सेल्फ इंटरेस्ट से बाहर निकल गए, और आपको ये रियलाइज हो गया है बड़ी बदतमीजी के एक दौर के बाद, टीनेज के बाद, कि यार दुनिया जो है वो मेरे लिए नहीं बनी, यानी और भी लोग इस दुनिया में रहते हैं, और आई हैव टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। फॉर द फर्स्ट टाइम द सोसाइटी कम्स इन। सोसाइटी को आप सोचना शुरू करते हैं, एज अ होल आप सोचना शुरू करते हैं कम्युनिटी के बारे में, और सबसे पहली उसमें कन्वेंशनल स्टेज में है इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कंफर्मिटी। इसको गुड बॉय और बैड बॉय, या गुड बॉय एंड गुड गर्ल स्टेज भी कहा जाता है। इसमें आप ऐसे बिहेव करते हैं
कि जैसा सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है या जैसा सोसाइटी एक अच्छे बच्चे से एक्सपेक्ट करेगी, आप तमीज से बात करना शुरू कर देंगे। क्यों? इस वजह से नहीं कि आपको बदतमीजी से बात करने से पनिशमेंट मिल रही है या तमीज से बात करने में मेरा बड़ा फायदा है, मुझे माली या किसी और किस्म का फायदा हो रहा है, बल्कि आप तमीज से इसीलिए बात कर रहे हैं लोगों से कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा बच्चा इस तरह तमीज से बात करता है, या आप उस तरह के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं जिस तरह के आप समझते हैं कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा बच्चा इस तरह के कपड़े पहनता है। जिस तरह बचपन में हम लोग निकरे भी पहन लेते थे, ठीक है, लड़कों की बात कर रहा हूँ, तो क्यों क्यों क्योंकि जी हमें कोई इससे गर्ज नहीं था कि लोग क्या सोच रहे हैं, नहीं। लेकिन अब शायद कुछ लोगों के लिए अभी भी शायद ये चीज नहीं आई, बट अब तो हम लोग निकरे पहनने से अवॉइड करते हैं, शॉर्ट्स पहनने से। क्यों? क्योंकि लोग समझते हैं, हमारी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, कि ये अच्छा नहीं है। तो इसमें आप सबसे पहले सोसाइटी को सोचते हैं और वो करने की कोशिश करते हैं जो सोसाइटी इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कंफर्मिटी, यानी सोसाइटी को कंफर्म करते हैं, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स को या स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स को आप कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें आपकी फैमिली आ जाती है। आप स्टार्ट करते हैं, आपकी फैमिली क्या एक्सपेक्ट कर रही है, आपके पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके बहन भाई क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस से आप स्टार्ट करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी की तरफ एज अ होल जाते हैं। सो यू डू व्हाट द सोसाइटी थिंक्स अ गुड पर्सन डज, और जरूरी नहीं वो एथिकल हो भी, समझ रहे हैं। अब आप एक सोसाइटी में रहते हैं, फॉर एग्जांपल एक बड़े गंदे नेबरहुड में जहाँ पे कत्लो गारत और मार पिटाई बहुत अच्छी समझी जाती है, ठीक है, जिस तरह अफगानिस्तान के कुछ एरियाज में वो मारना नॉर्मल है उनके लिए, ठीक है, कत्ल कर देना, ट्राइबल एरियाज में भी हमारे कुछ में कत्ल कर देना या है भी बात बात पे लड़ाई कर देना, और अगर आप नहीं मारते तो ये बुरा समझा जाता है ना। तो अगर आपकी कोई लड़ाई होगी आप किसी को मार देंगे, क्यों? क्योंकि सोसाइटी थिंक्स कि आपको किसी को मार देना है तो आप बहादुर हैं और आपकी क्या बात है जी, वाह वाह वाह। लेकिन दूसरी सोसाइटी में, हमारी फॉर एग्जांपल सोसाइटी में, मारना इतनी अच्छी बात नहीं है, मारना बहुत बुरा समझा जाता है। तो अगेन ये बात नहीं हो रही कि क्या चीज एक्चुअली एथिकल है या क्या नहीं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके एथिक्स बनते कैसे हैं, ठीक है। तो ये वाली एग्जांपल, मारने वाली एग्जांपल जो है, उस सोसाइटी के मुताबिक दिस इज एन इंटरपर्सनल अकॉर्ड और द पर्सन कमिटिंग मर्डर इज कंफर्मिंग टू दैट अकॉर्ड। सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है उसे कि कत्ल कर दे, लेकिन कत्ल करना इटसेल्फ तो अच्छी बात नहीं है। तो हम ये नहीं बता रहे कि एक अच्छा इंसान कैसे बनता है, हम बता रहे हैं इंसान की अच्छाई और बुराई कैसे डिटरमिन होती है। अच्छा, फिर इसके बाद है जी चौथी स्टेज, यानी कन्वेंशनल की दूसरी स्टेज, अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस। यहाँ पे अब आप वही करते हैं जो कि एक्चुअली अच्छा होता है बाय द लॉज एंड रूल्स। तो यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ऑफ डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। आप अथॉरिटी मानना शुरू करते हैं एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, और आप ये समझते हैं कि एक सोशल ऑर्डर जो बना हुआ है इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है और हम सबको रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, और एक अच्छा इंसान, एक गुड सिटीजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। वी ऑल शुड बिहेव लाइक अ गुड सिटीजन, और a good citizen means following the rules and laws of the society। तो हमें लॉज, हमें इशारा नहीं काटना जी, मिसाल के तौर पे। क्यों? क्योंकि इशारा काटना जो है वो बुरी बात है, वो लॉ के खिलाफ है, और अगर हम इशारा काटेंगे, सब लोग काटेंगे, तो ट्रैफिक का निजाम दरम बरम हो जाएगा। तो सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब इशारे पे खड़े रहें। तो यहाँ पे आप लॉज को मानना और एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं। ऊपर आप क्या कर रहे थे, इसमें और ऊपर वाले में, इंटरपर्सनल अकॉर्ड में क्या फर्क है कि आप सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को मानते हैं। अब यहाँ पे आप लॉज को मानना स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि आपके लॉज सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ हो, जिस तरह हमारे कई इलाकों में, मैंने इशारे की एग्जांपल दी, चले वही लेता हूँ कि सिग्नल काटना एक सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल कि आप सिग्नल काटेंगे,
सिग्नल पे कौन खड़ा होता है जी? कौन बेवकूफ खड़ा होता है? मिसाल के तौर पे ऐसी एक सोसाइटी में आप पले बड़े हैं कि सिग्नल में कौन बेवकूफ खड़ा होता है, सिग्नल में जो खड़ा होता है बल्कि उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा जाता है कि ये कौन आ गया। बट आप यहाँ पे अब गुड बॉय और गुड गर्ल वाले इमेज से बाहर निकल गए हैं और एक गुड सिटीजन की तरफ बढ़ गए हैं। आपने लॉ को हर हाल में फॉलो करना है क्योंकि लॉज आर देयर टू मेंटेन अ सोशल ऑर्डर। एक मिनट जी, मैं सवाल ले लूं, फिर उसके बाद अगले पे बढ़ते हैं। आवाज कट रही है बेटा, सॉरी, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, इंटरनेट प्रॉब्लम है। अच्छा जी, हबीब ने हाथ खड़ा किया था, चले जी। नेक्स्ट है जी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल, आप भी बहुत ही ऊपर निकल गए आप, अब क्या बात है आपकी, बहुत ही अच्छे हो गए हैं और अब आप सोसाइटी से भी बढ़ गए हैं, सोसाइटी से भी ऊपर ये आप सोचना शुरू कर दिया आपने। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यू स्टार्ट चैलेंजिंग द लॉस एंड रूल्स, और ये स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। तो जो पोस्ट कन्वेंशनल की पहली स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, here you start challenging the laws। और अगर कोई लॉ आपको लगता है कि वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है तो उसे चेंज कर देना चाहिए और आप एक्टिवली उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी तक आप वो कर रहे थे जो सोसाइटी के, जो सबकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक था, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक था, लेकिन अब आप लॉ से भी हट गए हैं कि लॉज आर फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट फॉर लॉस। ये एक बड़ी मशहूर कहावत है जो इस स्टेज में आप अप्लाई करते हैं जी। मैं रिपीट कर देता हूँ कि लॉज आर फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट फॉर लॉस। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आप अपने ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं एंड यू स्टार्ट चैलेंजिंग दोज लॉज व्हिच यू थिंक आर नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। ठीक है, बहुत से ऐसे लॉज हैं जो हमें लगता है कि सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है, शायद आपके ज़हन में भी कोई ऐसी बात आती है और आप कहते हैं कि उसको हमें चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी में बैठे हैं और वहां पे एक ड्रेस कोड है, ठीक है, आप उसको ड्रेस कोड को चैलेंज करना स्टार्ट करेंगे। कन्वेंशनल स्टेज में क्या था, आप कहेंगे नहीं यार ड्रेस कोड है, कंपनी वालों ने बनाया है, अथॉरिटी उनकी एक्सेप्ट की और वी हैव टू अबाइड बाय दैट ड्रेस कोड और हमें लॉज को फॉलो करना है। बट अब आप इस ड्रेस कोड को चैलेंज करने लगे कि यार ड्रेस कोड क्यों है। ठीक है, अभी आप ये नहीं, अभी आप रिबेल नहीं हो गए। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग इसको रिबेलियस हो जाए यहाँ पे कि नहीं मैंने नहीं पहनना, मैंने अपनी मर्जी के कपड़े पहनने हैं। ये बात तो नहीं हो रही कि आप रिबेलियस है अभी या नहीं, बट यू स्टार्ट चैलेंजिंग दोज लॉज। आप अपनी मैनेजमेंट से बात करते हैं कि सर ये क्या बात हुई, आपने ये ड्रेस कोड क्यों लगाया, हम ये कपड़े क्यों नहीं पहन सकते। फिर यू स्टार्ट रेजिंग योर वॉइस और आप, एक टाइम आता है आप इसमें बढ़ते रहते हैं, आप एनजीओ के पास जाते हैं, देखे जी हमें अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहनने दे रहे, आप केस कर देते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, देखे जी ये हमें अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहनने दे रहे। सो व्हाट हैपेंस, यू चैलेंज अ लॉ एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग टू चेंज इट। आप उसको चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपके जहन में अच्छे और बुरे की तमीज जो है वो लॉ से भी आगे निकल चुकी है। फिर जी फाइनली यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग ये स्टेज एग्जिस्ट करती है लेकिन यहाँ कोई कोई पहुंचता है। और क्या है जी ये स्टेज, इस स्टेज के मुताबिक इंसान सोसाइटी, लॉज और सब चीजों को जहन से निकाल देता है और अपना ही एक सेट ऑफ बिलीफ्स बना लेता है कि ये अच्छा है। और जर्नलाइज्ड, जर्नल बातें होती है, एब्स्ट्रैक्ट किस्म की बातें होती है, इस तरह इंसानियत, मैं हमें जी सबसे पहले इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, या
लोगों के लिए आसानियां हमें पैदा करनी चाहिए, या लोगों की जान बचाना सबसे जरूरी चीज है। तो अगर कोई लॉ या बात करते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल की, तो आप अपना एक इमेज बना लेते हैं, यानी अपना एक एथिकल फ्रेमवर्क बना लेते हैं अपने जहन में कि ये चीज सही है और वी हैव टू स्ट्राइव फॉर दिस, ठीक है। और इसमें जो लोग पहुंचते हैं थोड़े थोड़े लेवल पे, तो आपको लग रहा होगा कि यार हम भी शायद पहुंच गए हैं, बट ऐसा होता नहीं, क्यों हम लोग अभी भी लॉज को फॉलो करते हैं, लॉज को देखते हैं, सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं। ये लोग बिल्कुल इस चीज से अलहदा हो जाते हैं, सोसाइटी और लॉज एटसेट्रा। हम लोग थोड़े थोड़े कह सकते हैं अपने आप को, बट ऑब्वियसली वी आर नॉट इन दिस स्टेज, क्योंकि ये लोग कंप्लीटली इमर्स हो जाते हैं स्टेज पे। तो ये बात आप इसको कंफ्यूज ना करेंगे जी, मैं भी कहता हूँ कि जी दुनिया की ऐसी की तैसी नहीं। दुनिया की ऐसी की तैसी अगर आप कह रहे हैं, तो आप फिर ऊपर सेल्फ इंटरेस्ट स्टेज पे, समझ रहे हैं? आप डायरेक्टली अपने आप को यूनिवर्सल प्रिंसिपल की तरफ ना लेके जाए। ये ऐसी की तैसी नहीं कर रहे होते, बल्कि ये मान रहे होते हैं, बट ये कहते हैं कि हमें फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी काम करना है। इसमें एक दो मिसालें अगर मैं आपको दूं, तो ये जितने भी हमें ह्यूमैनिटेरियन मिलते हैं, फॉर एग्जांपल अब्दुल सत्तार ईदी साहब। अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बड़ी मशहूर एक दो बातें हैं, जिसमें एक बात है कि वो कहते हैं इंसानियत सबसे पहले। तो ये उनका एक यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल था। इसको हम कहते हैं दिस वाज द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, कि इंसानियत सबसे पहले। तो ये इस तरह के लोग जो हैं ये पहुंचते हैं। अब अब्दुल सत्तार ईदी साहब को कोई लॉ, कोई सोसाइटी, कोई भी अगर इसके अगेंस्ट आ रहा था, तो उनको उसका पता ही नहीं था, ठीक है। पता ना होना और मानना मानना भी ना, ऑब्वियसली पता भी ना होना, क्योंकि वो अपनी ही एक उनकी सोच बन चुकी थी, इंसानियत सबसे पहले, उसी की खिदमत करने निकले हुए थे और वही करी जा रहे थे। सो ये ऐसे लोग हैं जो कि छठी स्टेज तक पहुंचते हैं एथिक्स की, कि अपना ही एक सेट ऑफ एथिक्स बना रहे हैं। अच्छा, अब इसमें बुरे एग्जाम्पल्स भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छे ही बनेंगे प्रिंसिपल, कुछ लोग बुराई में अपने प्रिंसिपल बना लेते हैं और वो सोसाइटी लॉ सबको छोड़ देते हैं जी। वो खुद में एक जिसको कहते हैं ना हम फिल्मों की टर्म्स में, कि डॉन बन जाते हैं जी। वो डॉन्स जो है, जितने भी माफिया डॉन्स आप देखते हैं हिस्ट्री में, वो बेसिकली यहाँ पे आते हैं कि वो अपने प्रिंसिपल बना लेते थे, और सोसाइटी लॉज एटसेट्रा दे डोंट मैटर टू देम। और फॉर एग्जांपल एक आपने बड़ा मशहूर नाम सुना होगा, पैब्लो एस्कोबार, ठीक है, द ड्रग लॉर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड। इसके ऊपर मूवी भी बनी थी, नार्कोस। आप, मैं तो नहीं कहूंगा देखिए अभी, लेकिन चले वो वो लोग या हमारे भी यहाँ पे कुछ डॉन है, अब चले मैं नाम नहीं लेता, ठीक है, लेकिन उनके लिए लोगों को मारना इज नॉट अ बिग डील, लोगों को किडनैप करना नॉट अ बिग डील, भत्ता लेना नॉट अ बिग डील, क्योंकि उनके लिए ये एथिकल प्रिंसिपल बन गया है कि मतलब उन्होंने अपने प्रिंसिपल बना लिए कि हमने जी अपने आप को सबसे पहले देखना है, या वो कहते हैं जी कि हम भी लोगों की मदद कर रहे हैं, इंसानियत की मदद कर रहे हैं। तो वल्लाहु आलम, लेकिन उन्होंने अपनी एक सोच बना ली हुई है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल की तरफ बढ़ गए हैं, छठी स्टेज तक पहुंच गए, लेकिन इन अ नेगेटिव सेंस। ओके, तो यहाँ पे जी दो दो क्वेश्चन से दो बच्चों के हाथ खड़े थे जी, अभी भी हैं, मैं पूछ लेता हूँ जी। अस्मा ताहिर को मैं कर रहा हूँ जी अनम्यूट। जी अस्मा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर मैंने कहना ये था कि सर आपने पहले कहा था ना कि ये इन स्टेजेस में मतलब ऑर्डर नहीं है, कोई भी इंसान किसी स्टेज में फॉल कर सकता है। तो सर मेरे ख्याल से इन स्टेजेस में एक ऑर्डर है, मतलब पहली स्टेज ये प्री कन्वेंशनल है, फिर कन्वेंशनल है और पोस्ट बाद में आते हैं। मतलब कोई इंसान सडनली तो नहीं ना फॉलो कर सकता, फॉल कर सकता ये एंड लास्ट वाली स्टेज में, आई थिंक। हाँ जी ठीक है जी। बेटा ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा इट्स नॉट नेसेसरी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक्चुअली कोलबर्ग साहब ने कुछ सोच समझ के ये बनाया था, लेकिन इसके वो जो क्रिटिक्स हैं, फिर कोलबर्ग ने इसको खुद भी एक्सेप्ट किया होगा कि ये जरूरी नहीं है कि आप इन स्टेजेस को फॉलो करें, इनमें कुछ स्टेजेस स्किप भी हो सकती हैं,
ठीक है, मिसाल के तौर पे आप ओबीडियंस पनिशमेंट से निकले और आप डायरेक्टली इंटरपर्सनल अकॉर्ड में आ गए, हो सकता है, होता बहुत कम है, लेकिन पीजेड में तो था ना, इवन पीजेड की थ्योरी में भी ऐसा हो सकता है, आपस की बात है, लेकिन वहां पे चांसेस कम थे। तो आपकी बात ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा होता है कि आप इधर उधर स्टेजेस छाल मारते रहते हैं, ऐसा हो सकता है। तो अगर आपको लगे कि जी ये स्टेज तो कभी आई नहीं मेरे पे या किसी पे, तो भाई नहीं आई कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली एक स्टेज आगे निकल गए। हो सकता है कि आप एक स्टेज से वापस एक स्टेज पे आ जाए, ठीक है, जिस तरह आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली स्टेज पे थे, लेकिन आपको रूल्स एंड लॉज के बारे में पता चला, आपने पढ़ा कहीं पे या कुछ देखा, आप वापस आ गए एक स्टेज। तो ये स्टेजेस इंसान जो है ये जंप करता रहता है। पीरियड में आप जंप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपका दिमाग एक दफा बन गया, आप ये तो नहीं कह सकते मैं दोबारा बेवकूफ बन जाऊं, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई चोट ना लग जाए या बहुत ही आपका बेड़ा गर्क ना हो जाए, तब तक यू कैन नॉट मूव द स्टेजेस, ठीक है। अच्छा जी, हबीब को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी हबीब। सर इस जी। तरह नहीं हो सकता कि डिफरेंट ऑर्डर में, जिस तरह के देखे ना, अब ये ओबीडियंट है अगर कोई है ना, तो वो डायरेक्टली जो है ना वो सोशल ऑर्डर फॉलो करता है, यानी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बने हुए हैं उनको उसी टाइम फॉलो, बेशक वो छोटा बच्चा ही है लेकिन वो सोसाइटी में रहते हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, यानी कि वो डायरेक्टली जंप कर सकता है। ये नहीं, जरूरी नहीं हाँ, है कि वो स्टेप वो बाय स्टेप। डायरेक्टली जंप भी कर सकता है, प्लस आपकी बात जो है उससे ना एक और बात आती है कि इसमें थोड़ी सी ओवरलैपिंग भी है, और ये इसके अगेंस्ट सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही आया था, ओवरलैपिंग है कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की जो आप उसके अंदर लॉज को फॉलो कर रहे हैं, वो पनिशमेंट के डर से कर रहे हैं। ये फर्क है कि आपको पनिश किया जाएगा, इस वजह से आप फॉलो कर रहे हैं। Whereas in case of social maintenance order, आप उसको फॉलो करें क्योंकि फॉलो करना सोसाइटी के लिए अच्छी चीज है। अगर आप फॉलो करेंगे तो सोसाइटी काम करेगी, सोशल ऑर्डर मेंटेन करेगा। यहाँ पे बात आ गई आपके एथिक्स की। इसका मतलब आप ये देख लें कि पाकिस्तानी अभी तक पहली स्टेज पे है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, कि भाई सजा मिलेगी तो हम ओबीडियंस की तरफ बढ़ेंगे। चौथी स्टेज तो बहुत बात की बात है, यानी आप लॉज को फॉलो कर रहे हैं सजा के डर से, तो ये पहली स्टेज ही है, ठीक है। अच्छा, फिर सवाल अब कासिम जी, कासिम। सर मैंने ये कहना था कि आपने कहा था यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो हैं उसके अंदर आपने एग्जांपल दिया ईदी की, तो सर यूनिवर्सल प्रिंसिपल के अंदर तो ये है ना कि एक बंदा बिल्कुल कट ऑफ होके अपने रूल्स बना ले कि वो किसी चीज को, सोसाइटी को, रूल्स को, किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन ईदी जो है वो मतलब सेल्फ आइसोलेशन में तो नहीं गया, वो तो सारा रूल्स वगैरह फॉलो कर रहा है। बस वो ये है कि वो एक मतलब सोसाइटी की खिदमत के लिए उसने अपने आप के लिए जीना छोड़ दिया, मतलब कि वो हाँ, अपने आप मतलब अपने लिए कुछ नहीं कर। हाँ, मैंने वही बात की थी, मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि आप ये समझे कि ये ना समझे कि वो रिबेल कर दिया ना उसने, तो ये ऑब्वियसली रिबेल नहीं हो रहा यहाँ पे कि जी मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता और आप इस तरह के बन जाए, नहीं, ऐसे नहीं है। ऑब्वियसली सोसाइटी के लॉज को तो कुछ ना कुछ तो फॉलो कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को नहीं फॉलो करेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आप उनको चैलेंज करना शुरू करेंगे और चेंज करने की कोशिश करेंगे, यूनिवर्सल प्रिंसिपल में आप अपने बना लेंगे। अब यहाँ पे जहाँ कहीं पे अब यूनिवर्सल प्रिंसिपल वाला भी इंसान उन्हीं लॉज को मानेगा जो कि उसको लगेगा कि सोसाइटी के लिए अच्छे हैं, ठीक है। ये नहीं आप कह सकते कि सारे बुरे हैं तो हम किसी को नहीं मानते, वो बल्कि सिर्फ उन्हीं लॉज को मानेगा जो कि सोसाइटी के लिए उनको अच्छा वो समझेगा। अच्छा, फिर एक बात है मानना, एक बात है जानना। हम बात करें मोरल डेवलपमेंट की विच इज इन द ब्रेन, तो वो मान बेशक ले मजबूरन, लेकिन वो अब ज़हनी तौर पे इंसान लॉस से हट चुका है। वो अपने ही उसने लॉस बना लिए, सेल्फ आइसोलेशन में नहीं गया, ऑब्वियसली दुनिया में रह रहा है। और यही इस स्टेज के साथ बहुत से मसाइल हैं कि यही आर्ग्यू किया जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है, आप अपने लॉस बना लें, आपको रहना पड़ता है सोसाइटी के साथ, फिर तो आप सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ वापस चले जाओगे अगर आप अपने बारे में सोचोगे। तो जिसके बारे में फिर कोलबर्ग ने कहा था, ये एक बड़ी पेचीदा स्टेज है और ये कोई इस लेवल पे पहुंचता है। तो रिबेल नहीं कर रहे, मैंने भी जिक्र किया था लेक्चर के दौरान भी, इट इज नॉट एक्चुअली अ रिबेल। तो आप सोच में अपनी अलग से प्रिंसिपल्स बना लेते हैं। जी नबील। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स में आपने कहा था कि यहाँ पे जो है आप नहीं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आपने कहा था, सॉरी, आपने कहा था कि आप सोसाइटी से बढ़ जाते हैं, ठीक है, आप
आपकी सोसाइटी जो है वो नहीं आपकी सोच जो है वो यूनिवर्सल society एथिकल की- प्रिंसिपल में कहा था। नहीं, हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा था। अच्छा, क्या कहा था? आपने कहा था कि लॉज जो हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए होते हैं, ह्यूमन बींग्स लॉ के लिए नहीं होते हाँ, इनकी, लेकिन फिर आपने एग्जांपल से नहीं समझाया था। अच्छा, मैंने चले वैसे शायद दी थी, मैं फिर बता देता हूँ बेटा। फॉर एग्जांपल मैंने वो ड्रेस कोड की मेरा ख्याल एग्जांपल दी थी, आपको याद होगा। ड्रेस कोड आपको अगर एक जगह पे कंपनी में आप ड्रेस कोड पहनते हैं, एक ड्रेस कोड उन्होंने लगाया, तो आप अब उसको चैलेंज करेंगे, यार आपने ड्रेस कोड क्यों लगाया? आप फोरम्स में जाएंगे, अपनी मैनेजमेंट से बात करेंगे, फिर आपकी मैनेजमेंट से अगर बात ना बनी, आप टॉप मैनेजमेंट के पास जाएंगे, शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे, और आप एनजीओ के पास जाएंगे, कोर्ट में केस कर देंगे। तो आप इस तरह से आप अपने एक लॉ को यू आर चैलेंजिंग विच यू थिंक अगेन, हम ये बात नहीं करें कि अच्छा ये बुरा, ये बहस ही नहीं, क्योंकि अगेन एथिक्स आर डिफरेंट फॉर एवरीवनस मोरल डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये चीज बुरी है, तो आप उस लॉ, ये लॉ बुरा है, आप उस लॉ को चैलेंज कर रहे हैं। चलें जी, अरे आयशा का हाथ था जी, कहाँ गई आयशा? चले, मेरा ख्याल है पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, आयशा ने पूछना है जी। आयशा, सर जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है उसमें जो है ये बात आ जाएगी कि दो चीजें है ना, कि ये अच्छा सोचना या फिर मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचना है, या तो अच्छाई के या बुराई के। हाँ, मतलब अपना अपना एक अपने लॉज देन में, लॉज भी नहीं सॉरी, प्रिंसिपल बना लेना कि इररिस्पेक्टिव ऑफ सोसाइटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओबीडियंस पनिशमेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, आप अपने एक लॉज बना लें। यानी ऊपर वाले सारे स्टेजेस से आप निकल गए हैं, ना आप पनिशमेंट का सोच रहे हैं, ना आप अपने बारे में सोच रहे हैं, ना आप गुड बॉय बनना चाह रहे हैं, ना आप लॉज को जो बनाए गए हैं उनको कुछ उनके बारे में सोच रहे हैं। आपने अपनी ही एक एथिकल फ्रेमवर्क बना, ठीक है? जिस तरह मैंने ईडी साहब की एग्जांपल दी, ईडी साहब कहते थे कि इंसानियत सबसे पहले। अब इंसानियत की खिदमत के लिए अगर उनको पनिश किया जाए, उनको कोई गर्ज नहीं, वो अपने आप को बिल्कुल सेल्फलेस हो गए थे, सेल्फ इंटरेस्ट खत्म था बिल्कुल। फिर गुड बॉय बैड बॉय बनने की इमेज नहीं थी। वो आपने उनकी स्टोरी सुनी होगी, वो खुद भी वो एम्बुलेंस चलाते अक्सर चंदा लेने चले जाते थे, सड़क पे बैठ जाते थे चंदा इकट्ठा करने, तो जमीन पे बैठ जाते थे कि चंदा इकट्ठा करना है। तो वो जो इमेज है कि यार गुड बॉय बैड बॉय नहीं, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, तो वो उससे भी निकल चुके थे। फिर लॉज के अगर कोई ऐसा लॉ, वैसे मुझे कोई ऐसे मुशाहिदा तो नहीं मिलता, लेकिन अगर कोई आता लॉ जो इंसानियत की खिदमत के अगेंस्ट जाता, तो वो उस लॉ को भी ना मानते और इंसानियत की खिदमत करते। उन्होंने एक अपना प्रिंसिपल बना लिया था, इंसानियत सबसे पहले, वो सब कुछ उस पे बेस्ड था। तो ये बाकी सब स्टेजेस से वो निकल चुके थे। चलो जी, एक अब आपको मजीद मैं वीडियो दिखाने लगा हूँ। अगेन वो वीडियो आपके लिए ये जो एग्जांपल्स वगैरह अगर आप और जानना चाह रहे हैं, तो कोलबर्ग के डेवलपमेंट मॉडल की एक वीडियो है, इसी तरह की शॉर्ट वीडियो 4-5 मिनट की, वो भी इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, तो ये आप सुनिएगा। और फिर इसके बाद अच्छा जी, एक बात मैं बता दूं कि इस वीडियो के एंड पे एक सिचुएशन है जिसको हम कहते हैं हाइंस डायलेमा। याद रखिएगा, वो आपने गौर से सुनना है वो आपने गौर से सुनना है। Lawrence Kohlberg's theory claims that our development of moral reasoning happens in 6 stages. The stages themselves are structured in 3 levels: pre-conventional, conventional, and post-conventional. To understand this better, imagine a conflict at school. There is a fight in the schoolyard. 2 ninth graders are beating up Tom. Those who watch the fight are at different stages of moral development. Let's see what they do and how they justify their behavior. At stage 1, we make moral judgments based on obedience and punishment. Finn's sense of good or bad is directly linked to whether he gets punished or not. Finn sees what is happening to his friend and wants to help.
But he doesn't because he is afraid the teacher may punish him if he gets caught fighting. He asks himself, how can I avoid punishment? At stage 2, we are motivated by self-interest. Mary decides to intervene and help Tom. She knows that she might get punished, but she also knows that she could become a victim herself someday. If she helps Tom now, he might help her in the future. She is asking herself, what's in it for me? At stage 3, interpersonal accord and conformity guide our moral judgment. Betty sees the fight and wants to intervene, but when she realizes that all the others are just watching, she decides not to get involved. She wants others to see that she is a good girl who is conforming with the ethics of the community. She asks herself, what do others think of me? At stage 4, we value authority and want to maintain social order. When the teacher sees the group fighting, he immediately steps in and shouts, "Stop! Fighting at school is forbidden." He feels that, above all, it is important to follow the rules, otherwise chaos breaks out. He feels it is his duty to uphold the rules that sustain a functioning society. He asks himself, how can I maintain law and order? At stage 5, we understand rules as a social contract, as opposed to a strict order. Jessie, who watches from afar, is not sure how she feels about this. To her, rules make sense only if they serve the right purpose. Obviously, the school rules prohibit fighting, but maybe Tom deserves to finally learn his lesson. Just yesterday, he punched a young girl from grade 1. She asks herself, does a rule truly serve all members of the community? At stage 6, we are guided by universal ethical principles. All those involved now have to face the headmaster. He first explains the school rules and why they exist. He then clarifies that rules are valid only if they are grounded in justice. The commitment to justice carries with it an obligation to disobey unjust rules. The headmaster's highest moral principle is compassion. He believes that all people should learn to understand each other's viewpoints and that they don't feel alone with their feelings. He asks, what are the abstract ethical principles that serve my understandings of justice? At the pre-conventional level, Finn is driven by fear and Mary by self-interest. Both judge what is right or wrong by the direct consequences they expect for themselves and not by social norms. This form of reasoning is common among children. At the conventional level, Betty responds to peer pressure, and the teacher follows the rules. Their morality is centered around what society regards as right. At this level, the fairness of rules is seldom questioned. It is common to think like this during adolescence and adulthood. At the post-conventional level, Jessie knows that things are complicated because individuals may disobey rules inconsistent with their own morality. The headmaster follows a universal ethical idea, at complete disconnect with what society thinks or the rules say. To him, everything is solved through compassion. The right behavior, in his opinion, is therefore never a means to an end, but always an end in itself. Not every person reaches this level. The American psychologist Lawrence Kohlberg based his work on Piaget's theory of cognitive development. In order to confirm his theory of stages of moral development, Kohlberg interviewed boys between the ages of 10 and 16. He analyzed how they would justify their decision when confronted with different hypothetical moral dilemmas. We will now present to you the most famous moral dilemma Kohlberg presented to his students. Let's see what you would do. The Heinz Dilemma. A woman was on her deathbed. There was only one drug that the doctors thought might save her. The druggist that made that particular medicine sold it for 10 times the price of the production costs. The sick woman's husband, Heinz, was poor and could not afford to buy the drug, not even with the financial help of his friends. Heinz then asked the pharmacist to sell it to him for half the price, but he refused. To save the life of his wife, Heinz broke into the man's laboratory and stole the medicine. Now tell us, should Heinz have stolen the drug? Would it change anything if Heinz didn't love his wife? What if the person dying was not his wife, but a stranger?
Should the police arrest the druggist for murder if the wife had died? Please write your answers and their justifications in the comments below. सॉरी जी, जी नबील। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर पहले मैं आंसर दूं कि क्वेश्चन करूं? आप दोनों कर लें, आप आंसर दे दें। पहले आप क्या करेंगे? सर मैं दो वाली साइड की मुझे समझ आई है। वो एक तो वहाँ पे जो है कि कोई स्ट्रेंजर होता है तो ऑफ कोर्स वो सेल्फ इंटरेस्ट में आता है, तो वो कहता है कि अगर मैं लॉ को ब्रेक करूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी, तो वो ऐसा ना करता। और सेकंड ये है कि अगर उसने अब कर लिया है और चोरी कर ली है तो लॉ कहता है कि आपको चोरी करने पर सजा मिलेगी, लेकिन यहाँ पे उसकी इंसान की जान पे बनी हुई है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो फोर्स जो है वो 10 टाइम ज्यादा उससे वो डिमांड कर रहे हैं, तो वो भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे वो देखेगा कि मैंने ठीक किया है, क्योंकि लॉ जो है वो किसी की जान तो लेने से नहीं ना, मतलब कि ये तो नहीं कहता कि जान ही चली जाए किसी की। और सेकंड जो क्वेश्चन है सर वो ये है कि ये जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है ना, इसका जो मेजर डिफरेंस है यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स में, ये समझ नहीं आई। अच्छा ठीक है, चलिए जी आपका आगे। अभी मैं आपको एक और छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, उस पे आप देख लेंगे कि आपके जो आंसर्स हैं वो एक्चुअली आपको कहाँ पे फॉल करवाते हैं। तो ये डिफरेंस मैं आपको बता दूं बेटा। इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट you accept that there are laws and you accept the majority of them, ठीक है, but you start challenging those laws which are not for the good of the society। और यहाँ पे आप उनको चैलेंज करें लेकिन आप रह लॉस के अंदर ही नहीं है, यानी यू आर एक्चुअली फॉलोइंग अ म्यूटेटेड वर्जन ऑफ द फोर्थ स्टेज। ठीक है, फोर्थ स्टेज थी सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस। आप सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के ख्वाहिशमंद हैं, यानी लॉज को फॉलो करना चाहिए, लेकिन उन्हीं लॉज को फॉलो करना चाहिए जो अच्छे हैं सोसाइटी के लिए, उनको नहीं करना चाहिए, उनको चैलेंज करना चाहिए। अच्छा, जो एथिकल प्रिंसिपल स्टेज है उसमें आपको पता ही नहीं है, या आप इस चीज से बिल्कुल बालातर होकर सोचते हैं कि लॉज क्या है। लॉज के बारे में आपको मतलब आपकी थिंकिंग ये नहीं है। ठीक है, आपने अपनी जो एक प्रिंसिपल बना लिया, जिस तरह इस एग्जांपल में आपको था कि उस हेडमास्टर का जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल था उसकी नजर में दैट वाज कंपैशन, यानी सबके साथ हमें सबको मौका मिलना चाहिए और प्यार मोहब्बत होना चाहिए। या दूसरा था जस्टिस, कि जस्टिस से बात करनी चाहिए, विद कंपैशन एंड जस्टिस दोनों मिला के हमें बात करनी चाहिए। अब इसमें स्कूल लॉज क्या कह रहे हैं कि जी बच्चे ने दूसरे को मारा उसको एक्सपेल कर देना चाहिए, लेकिन वो हेडमास्टर एक्सपेल नहीं कर रहा क्योंकि उसके बकौल कंपैशन वाज द मेन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आप लॉज को सिर्फ चैलेंज करना नहीं स्टार्ट करते, बल्कि उनके अगेंस्ट एक्ट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नोइंगली या अननोइंगली। ये बात मैं बता दूं, यहाँ से आप रिबेल की एग्जांपल ना लीजिएगा कि आप एक तरह से रिबेल हो जाते हैं उस केस में जहां आपको लॉ का पता है बट स्टिल आप उसके अगेंस्ट जाते हैं। तो ऑब्वियसली रिबेल का मतलब क्या होता है कि लॉ को जानते हुए आप उसको नहीं मान रहे, लेकिन आपकी नीयत रिबेल करने की नहीं है, आपकी नीयत है अच्छाई की। तो इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो मेन डिफरेंस है वो अगर मैं आपको एक बताऊं, इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट
you follow most of the rules, but you start challenging those which are not good for the society. And in universal ethical principle, आप अपने ही लॉज बना लेते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं और वही सोसाइटी के लिए अच्छे हैं, ठीक है। माइनर सा डिफरेंस है, ये सब स्टेजेस के अंदर ना माइनर सा डिफरेंस है। देखा जाए तो पनिशमेंट भी सेल्फ इंटरेस्ट है, ठीक है, यानी पनिशमेंट से बचना जो है, आप कह सकते हैं कि सर पनिशमेंट से बचना भी सेल्फ इंटरेस्ट है, वो उसको अपने आप को पनिशमेंट होगी, उसको सजा मिलेगी तो वो उससे बचने के लिए ये काम कर रहा है। तो ये है तो बेसिकली एक ही स्टेज, उसके दो वेरिएंट्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे एक स्टेज के दो वेरिएंट्स हैं, माइन्यूट सा डिफरेंस है इनके दरमियान। जी बेटा, सवाल और कोई? अच्छा यार सॉरी, वो मैं माइक ऑन करना भूल गया। चलें जी, आई होप अटेंडेंस भी सबकी होगी। चलें, अब हाइंस केस को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। हाइंस केस के मुताबिक जी एक बंदे की बीवी बीमार है, मैं जल्दी से बता दूं, और एक ऐसी दवाई है जो सिर्फ उसको बचा सकती है और कोई चीज उसको नहीं बचा सकती, और वो दवाई जो है वो बहुत महंगी है और वो फार्मासिस्ट को पता है कि ये बड़ी क्रिटिकल दवाई है, तो उसने महंगी करके बेच रहा है वो, और हाइंस जाता है तो उसके पास पैसे नहीं होते, वो उसकी नहीं मानता फार्मासिस्ट, तो उसकी बीवी मर रही है, साथ ही साथ उसके पास पैसे भी नहीं है, तो यहाँ पे उसको क्या करना चाहिए? तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? बेसिकली 3 ऑप्शंस हैं। या तो उसको चोरी कर लेनी चाहिए, ठीक है, और या तो चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी नहीं कर रहा तो उसके ज़हन में है कि यार चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी की तो मैं पकड़ा जाऊंगा और फिर पीछे मेरी बीमार बीवी अगर बच गई तो उसकी कौन हिफाजत करेगा, या मेरे बच्चे हैं छोटे उनको कौन देखेगा बीवी के मरने के बाद, तो मैं चोरी नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरा है मैं चोरी नहीं कर रहा क्योंकि मैं जेल चला जाऊंगा, और जेल जाऊंगा तो मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी, और मेरे से लोग भी दूर हो जाएंगे, क्रिमिनल समझेंगे मुझे। तीसरी ऑप्शन है उसके पास कि चोरी कर लूं क्योंकि लोग वरना कहेंगे कि यार कैसा हस्बैंड है अपनी बीवी के लिए, ये काम नहीं कर सका, या मैं चोरी ना करूं कि लोग क्या कहेंगे कि ये इंसान चोर है, पूरी जिंदगी मुझे चोर कहते रहेंगे। फिर एक ऑप्शन है कि यार जो मर्जी हो जाए, जिंदगी बचाना जो है वो चोरी करने से बड़ी बात है, तो चोरी अगर कर भी ली जाए तो खैर है। तो ये कुछ ऑप्शंस थी आपके पास, आपने कुछ ना कुछ इसमें सोच लिया होगा। ये क्योंकि हमने पढ़ लिया ना, तो शायद आपके ऑप्शंस जो है ना वो कुक्ड भी हो, यानी आप जान के भी कुछ सोच सकते हैं, हो सकता है। अच्छा, फिर एक बात है इसके अगेंस्ट जो क्रिटिसिज्म आया हाइंस केस के अगेंस्ट, कि कहना और है करना और है। अगर बाकी में ऐसी कोई सिचुएशन हो तो हो सकता है जो लोग कह रहे हैं कि जी हम अपनी बीवी को बचाने के लिए सूली में भी लटक जाएंगे, वो बड़े बड़े खामद जो है वो फिर रह जाते हैं असल में, ठीक है। तो ये बीवियों का गिला भी होता है कि आप कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म दिया। तो चले देखते हैं जी कि आपने क्या किया, क्या सोचा और वो एक्चुअली कहाँ पे फॉल करता है। जी जनाब, ये वीडियो है 2-3 मिनट की, इससे आपको आइडिया होगा कि आपने क्या आंसर चूज करना है, तो उसका क्या मतलब है। Levels in 6 stages. The first level is the pre-conventional level. Stage 1 is the avoid punishment stage. This means the person will justify their response by avoiding punishment. Like, I don't want to steal the drug because I don't want to go to jail. Stage 2, and the last stage of the pre-conventional level, is considered the what's in it for me stage. So, for example, someone in stage 2 would say, I would steal the drug because if I steal the drug and my wife lives, I will be considered a hero. What's in it for me? I'll be a hero, so I should steal the drug. Level 2 is the conventional stage. Stage 3 is the first stage of the conventional stage and focuses on rules and norms. Someone in stage 3 would say, I wouldn't steal the drug because a good boy or girl doesn't steal, or I would steal the drug because a good husband would steal to save his wife's life. Stage 4 is a response that includes following the rules and maintaining societal norms. For example, someone in stage 4 would say, I wouldn't steal the drug because it's against the law, or I would steal the drug because most honest people would steal to save their wife's life.
Carol Gilligan, one of Kohlberg's students, believed that Kohlberg's theory was biased against females. For example, she believed that females were more likely to prefer stage 3, a care relationship orientation of morality, whereas males were more likely to prefer stage 4, which is a justice orientation of morality. According to Gilligan, stage 3 should be equal to stage 4. However, Kohlberg disagreed. Level 3 is the post-conventional level. Many people do not reach the post-conventional level. Stage 5 is defined by social contracts. So, for example, someone in stage 5 would say, I would not steal because respect of personal property ownership is an important part of maintaining laws and societal order. Someone in stage 5 may also say, I would steal the drug because a law cannot justify losing a human life. Stage 6 is the ethical principle association. For example, someone in stage 6 would say, saving the most amount of lives possible is always the best decision, so I would steal the drug. Now, very little people fall into stage 6, but Kohlberg swore that it existed. Now that you know the stages of Kohlberg's theory, go back and look at your response. What stage level response did you give? Now, if you जी जनाब, तो ये आपने देखा कि थोड़ा सा एक एग्जाम्पल वीडियो थी कि वेयर डू यू एक्चुअली फॉल, तो आप सब ने शायद अपने आप को कहीं ना कहीं एसोसिएट कर लिया हो। तो आप लोग दोबारा से ये वीडियो भी देख सकते हैं नेट पे सर्च करके और फिर दोबारा अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। बट ये एक और मैं बात बता दूं कि ये जो स्टेजेस हैं ये आप एकदम से अपने जहन में नहीं बना सकते। यानी आप आज से ही जो है अब्दुल सत्तार ईदी नहीं बन सकते जी। आप आज से अपने आप को यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल वाला नहीं बना सकते। ये कोलबर्ग के मुताबिक एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। और अगेन बहुत से फैक्टर्स, जो फैक्टर्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपकी अपब्रिंगिंग, आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, आपकी एज, आपका जेंडर भी। इवन अभी आपने बल्कि देखा कि ये जेंडर बाइस्ड भी हो सकता है, क्योंकि हाइंस केस में ज्यादा के मुताबिक जो स्टडी की गई, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स वर एट लेवल 3, यानी दे वर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन इमेज, गुड बॉय गुड गर्ल वाला। और ऐसी बात है भी हमारे खासतौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा जजमेंटल भी हो जाते हैं और लड़के जो है वो ज्यादातर चौथी स्टेज में फॉल करते हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की भी अगर बात की जाए तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बारे में कहा जाता है कि ज्यादातर स्टेज 2 में यानी कन्वेंशनल स्टेज में फॉल करते हैं, कोई 3rd में है, कोई 4th में है। और बहुत कम ऐसा होता है कि आप यहाँ से 5वीं स्टेज में जाए। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड दे स्टे अपनी जिंदगी में पूरी में दे स्टे एट लेवल 4 ओनली, यानी वो 4 तक ही जाते हैं। कुछ बहुत असूल पसंद होगा, आपने देखा होगा अभी भी कुछ अंकल हैं जो बहुत असूल पसंद है और वो एक टाइम पे ऑफिस जाते हैं, एक टाइम पे ऑफिस आते हैं, एंड रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, तो दे डोंट चैलेंज द लॉज थ्रू आउट देयर लाइव्स। तो ज्यादातर लोग अकॉर्डिंग टू द स्टडीज स्टेज 4 तक ही रहते हैं, 5 तक बहुत कम जाते हैं। 5 के बाद 5 में यू स्टार्ट चैलेंजिंग द लॉज, लेकिन 6 तक बहुत कम लोग जाते हैं कि वो अपने ही लॉज बना लें, यानी वो किसी भी लॉ को ना दें, वो बस मैं वही लॉ फॉलो करूंगा जो कि जस्टिस से रिलेटेड है और उनको पता भी नहीं होता लॉज का। तो बहुत कम लोग होते हैं, ऐसे लोगों को हम पागल कहते हैं, ठीक है, या ये बेवकूफ है या ये साइको है। तो वो बेचारे बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। खैर, अच्छे लोगों की यहाँ पे कहाँ जगह इस दुनिया में। बट चले जी, ये था आज का लेक्चर, और क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं अगला टॉपिक स्टार्ट करने का, विच इज एक्स 5 मॉडल। तो इंशाल्लाह ताला ये वाला मॉडल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फ्राइडे वाले दिन आई गेस हमारी क्लास है। तो आज से रिलेटेड अगर कोई सवाल है बेटा तो अभी कर लें, आपके पास 2 मिनट रह गए हैं, और वरना उसके बाद फिर अगर बीच में क्लास खत्म हो जाए जी तो फिर YouTube पे आप ये लेक्चर देख लीजिएगा। अच्छा जी, एक मिनट, नबील का एक सवाल है। जी नबील। सर ये एट द एंड हम ये तो नहीं कह सकते कि ये स्टेज अच्छी है और ये स्टेज बुरी। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल भी नहीं कह सकते कौन सी अच्छी कौन सी बुरी है, बल्कि ये आपका ये कहना भी कि कौन सी अच्छी कौन सी बुरी है, ये आपके अपने मुताबिक है ना। अब कुछ लोगों के लिए 4th स्टेज बहुत अच्छी है,
लॉज बनाए गए हैं, सोच समझ के बनाए गए हैं, लॉज को फॉलो करना है। इस्लाम में भी लॉज दिए गए हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और कुछ लोगों के लिए छठी स्टेज बहुत अच्छी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए छठी स्टेज है तो अच्छी, लेकिन पहुंचना नहीं है, पहुंच सकते नहीं है। तो ये काफी इसमें डिफरेंसेस आ जाता है, जिसकी वजह से काफी क्रिटिसिज्म भी होता है हमेशा से कोलबर्ग। और हर साइकोलॉजिकल थ्योरी के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, एथिक्स इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। तो ये एथिक्स इसीलिए मजे का सब्जेक्ट है, इसमें बहस का बड़ा मौका मिल जाता है हमें। तो हर एक एथिक्स डिफरेंट है, हर एक के लिए अच्छा बुरा डिफरेंट है। तो हमारे ऊपर ये डिस्कशन का, रिसर्च का स्कोप हमेशा मौजूद रहता है। जी हबीब। सर मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह आपने कहा है कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल में लोगों को पागल समझा जाता है, तो पागल इस सेंस में समझेंगे कि अगर वो बुरे रूल्स जो हैं वो खुद बनाएंगे, लाइक अगर पंचायत देखा जाए तो वो अपने ही रूल्स बनाएंगे, और वो जिसमें वो सती और वनी का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो जाहिर सी बात है गलत बात है। लेकिन अगर अब्दुल सत्तार ईदी जैसा बंदा एक काम अच्छा काम कर रहा है, तो हम उसे ऐसे तो नहीं ना कहेंगे कि वो यानी कि अब वो इस तरह कर रहा है। ये मैं वही बात की है कि देखिए, आपने कुछ को तो कह दिया ना, उनको कह दिया जो आपकी एथिक्स के अगेंस्ट थे, ठीक है, आपके मोरल्स के अगेंस्ट थे। उसको नहीं कहा जो आपके मोरल के साथ है। तो यही मैंने भी जिक्र किया कि ये बड़े मजे की डिस्कशन हमेशा बनती है एथिक्स के हर टॉपिक के ऊपर कि क्या सही है क्या बुरा। ये आप लोगों के लिए ओवरऑल गाइडलाइंस है, ठीक है। आप इनमें अपने आप को कहीं देख सकते हैं, इन गाइडलाइंस में समझ सकते हैं। हो सकता है आप अपनी थिंकिंग को चेंज भी कर दें, बट यहाँ पे तो बहस ही नहीं कि कौन सही है कौन गलत है। ये मोरल डेवलपमेंट मॉडल है। नबील ने भी यही सवाल किया, हम ये बात ही नहीं करें कि कौन सही है कौन गलत है, हम ये बात करें कि ये मॉडल है, इसके थ्रू आप सीढ़ियां चढ़ते हैं अपनी मोरल डेवलपमेंट की। जी चले बेटा, टाइम खत्म होने वाला, लास्ट मिनट। तो मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज। आप सबको इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी फ्राइडे को। दिस लेक्चर वुड बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब शॉर्टली इंशाल्लाह ताला। तब तक अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।